जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 पीएम मोदी मुर्दाबाद पीएम मोदी मुर्दाबाद 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 बम्बई सरकार मुर्दाबाद मुंबई सरकार मुर्दाबाद 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 एनआईए मुर्दाबाद एनआईए मुर्दाबाद मुर्दाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा एसडीपीआई के नारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा एसडीपीआई के नारों से ये जो गुंडागर्दी है ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो गुंडागर्दी है ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी एनआईए तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी एनआईए तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नामर्दों की है निशानी नामर्दों की है निशानी नामर्दों की है निशानी नामर्दों की है निशानी गुंडागर्दी मचाते हैं गुंडागर्दी मचाते हैं कम से कम ये तो बता दे, हम भी शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन बीजेपी इस तरह से जो है ना छापे मारकर सेक्युलर लीडर्स के, हमारे पार्टी के नेशनल लीडर्स के और हमारे कैडर्स के घरों पर छापे मारकर एक डर का, खौफ का माहौल पैदा करना चाह रही है। क्योंकि इस तरह से डराने से हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर डरने वाले नहीं हैं। जैसे कि आप लोग देखे हैं, हमारे लीडर, नेशनल लीडर रियाज फिरंगी पेटे, जब उन्होंने मीडिया से मुखातिब किया, मुस्कुराते हुए मुखातिब किया, इसका ये सबूत है कि हम डरने वाले नहीं हैं। लिहाजा ये इसलिए बीजेपी जो है ना एसडीपीआई से नाराज़ होने की वजह ये है क्योंकि आईनी बेदारी अवाम में जाकर एसडीपीआई बेदार कर रही है, अवाम को बता रही है तुम्हारे आईनी हुकूक क्या है। ಇವತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಏನಾದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಹಕ್ಕಿನ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಇದ್ದೇವೆ ತಾನೆ? ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಂತರಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಈ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ, ದಾಳಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಕುತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎನ್ಐ ಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿ, ಇಡಿ ಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿ ಟೀಮ್ಗಳು. ಇವು ಇಂಥ ಬಿ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಹೆದರೋದಲ್ಲ. ನೀವು ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೂ ಸಿಗೋದು ಬರೆಗೈಲೇ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದೆ.
ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋರಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ BJPಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಥರವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ BJP ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಳ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾ SDP ಆಗಿ ಅಂಜಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಇಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಹೊಸದಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಪುನಃ ಬನ್ನಿ, ನಮಗೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಆದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಇಡಿ ಅಂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ BJP ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಇವರು NIA ಇಡಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒತ್ತಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ಒತ್ತಿ ಕೂಡಿಸೋರು ನಾವಿಲ್ಲ, SDPI ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ರಿಯಾಜಿ ಫರಂಕಿ ಪೇಟಾದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಆದಂಗೆ ಗರಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು BJPಯ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊಸದಾಗಿಲ್ಲ, ಇಡಿ ಇರಲಿ, NIA ಇರಲಿ, BD ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಇರಲಿ, ಆದ್ರೂ ಬಿ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಸರಿಯಾದ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮಾಯಕರಿಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಬಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರೋ ಮುನ್ನೆನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ज्वाइन ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ पहले ये समझ लो ये न्याय वाले, क्योंकि ना तो ये रेड हमारे लिए नहीं है, ना तो ये रेड के बाद आपके पास क्या भी नहीं मिलकर आपका बेशर्मी से वापस जाना, ये भी आपके लिए नया नहीं है। अरे ये SDPI आपके छोटी मोटी जमात या छोटी मोटी पार्टी समझे, ये नेशनल पार्टी है ये। और ये SDPI का एक एक कैडर ना NIA से रेड से डरता है, ना ED के रेड से डरता है। और तो और मैं ये कहना चाहता हूँ NIA वालों के जिम्मेदारों से, अगर आपको रेड करना है तो उनके घर पे रेड करो जो 40 कमीशन लेकर घर पे बैठते हैं, उनके घर पे मिलता आपको। SDPI के जिम्मेदारों पे घर पे रेड करने से आपको बेशर्मी मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। और तो और ये ED का रेड करना, NIA का रेड करना, ये दरअसल SDPI की बढ़ती हुई ताकत को कमजोर करना है। और ये समझ रहे हैं कि ये ED से SDPI की ताकत कमजोर हो रही है, तो मैं इनसे बड़ा बेवकूफ, इनसे बड़ा जाहिल और कोई नहीं समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का एक प्रोटेस्ट आप सबको मालूम ही है कि एक हमारे नेशनल सेक्रेटरी रियाज फरंगी पेट साहब के ऊपर कल बरोज़ 8 तारीख के दिन क्या बोले तो NIA ED उनके घर के ऊपर एक छापामारी किए है। ये पूरे हमारे ऑल ओवर इंडिया के जो हमारे SDPI कार्यक्रम, इसे क्या बोले तो हमें सख्त मजम्मत करते हैं। क्यों बोले तो एक बिना कसूर के, एक बिना वजह के क्या बात बोले तो आको रेड करते हैं। बोले तो वो घर को, वो माहौल को और कितना परेशान कर को ये आज के माहौल में कर रहे हैं। तो एक रियाज फरंगी पेट के साथ जितने भी कांटेक्ट में रहने के लोग कितना परेशान हो सकते, ये NIA ED वो जो माहौल को ख़राब करने का सोच रख रही है। तो हमें इसे NIA ED के ये जो ड्रामेबाज करने का है ना, इसे सख्त मजम्मत करते हैं। ऐसे आने वाले दिनों में ऐसा फिर बढ़ता जाएगा तो हमें इनके खिलाफ अभी सख्त प्रोटेस्ट करते हैं और धरना बैठ के हमें NIA के ED के खिलाफ जाना पड़ता है। क्यों बोले तो एक बिहार के अंदर एक सरकार गिरने की वजह SDPI बल को पहले ही 1 महीना पहले मालूम था। तो उसकी एक ये क्या बोले तो TV या माध्यम के जानिब से आया था।
तो वो जानिब से ये लोग क्या बोले, हमारे वहाँ के एक इंचार्ज रियाज फरंगीपेट साहब के घर के ऊपर एक रेड करे, ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी की बात है। कोई भी हमें संविधान के फेवर में, हमें संविधान के चौकट में हमें चलने वाली एसडीपीआई के ऊपर बार बार हमले होते जा रहे हैं। कई ये देश के अंदर एक चिमटी भी चली तो आवाज़ आती, वैसा एसडीपीआई का कारकुन कहीं तो भी एक चला तो उसके खिलाफ एक अलग एलिगेशन करना, उसके ऊपर एक अलग लेबल लगाना, ये बीजेपी की फितरत हुई। इसको ऐसी फितरत को ये बीजेपी और जो इसके हमारे अमित शाह की पॉलिसी है, हमें इसे बहुत पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमें इसको क्या बोलते हैं, बहुत मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें ऐसा बढ़ते जाएगा तो हमें बढ़ाएंगे, हमारा प्रोटेस्ट बढ़ाएंगे, हमारा एक धरना भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। नेशनल लीडर रियाज फरंगीपेटे के मकान पे जो ईडी सुबह 5 बजे से जो रेड कर थे उनके मकान पे एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एक्चुअल क्या है, मुसलमानों को टोटली खौफ में ला कर है। आज सिर्फ इंडिया के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टी, वाहिद पार्टी है जो इतना होने के बाद भी जो है हुकूमत के गलत पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ और जहाँ कहीं भी जुल्म होता है उसके ख़िलाफ़ कानून के दायरे में रहकर एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है, आवाज़ उठा रही है। ये जो है बर्दाश्त नहीं है बीजेपी वालों को। जितने भी आज एक्टिविज़म कर रहे थे उन तमाम को जो है कि कहीं ना कहीं देशद्रोह का केस डालकर उनको अंदर किया जा रहा है। आप तमाम लोग देख रहे हैं कितने एक्टिविस्ट आज अंदर हैं। और इसी तरीके से कोई भी मीडिया वाला भी अगर से खुलकर बात कर रहा तो उसको मीडिया को भी कहीं ना कहीं टार्चर किया जा रहा था। ऐसे बहुत से हमारे सामने मिसाल हैं। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये चाहती है कि मुल्क के मुसलमान ही नहीं, तमाम तबकात के लोग जो है आज ईडी एनआईए की जो है एक भी थोड़ी भी इज्जत नहीं बची। एनआईए कहाँ पे इस्तेमाल होता था, हम लोग देखते थे जहाँ कहीं भी टेररिज्म का जहाँ कहीं भी मुल्क का ख़तरा होता था उस वक्त एनआईए का इस्तेमाल होता था। यहाँ पे कुछ अगर से एक छोटे मोटे एक मर्डर होता, प्रवीण नेट्टार जैसा एक शख्स का मर्डर होता तो उस वक्त एनआईए की क्या ज़रूरत है। अगर से एनआईए लाना ही था तो अगर से प्रवीण नेट्टार के साथ हमारे और मंगलूर में 2-3 मर्डर हुए, मुस्लिम के नौजवानों का मर्डर हुआ, वहाँ पर भी एनआईए लाना चाहिए था। लेकिन धर्म की बुनियाद पर इस तरीके से अगर से एनआईए का ईडी का गलत इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इसका मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं फाजिल है और दूसरे मकसूद है, ऐसे तमाम नौजवानों का मर्डर हुआ। और नरगुंद में भी जो है वहाँ पर भी हमारे इसका मर्डर हुआ था, उस वक्त भी जो है नज़रअंदाज किया गया। और इस मुल्क के जो भी टैक्स देकर पैसा देकर हैं लोग, उन तमाम का पैसा जो है ऐसे गलत जाकर जो है प्रवीण नेट्टार के जो कत्ल होकर था उस वक्त भी 25 लाख जो है अवाम का पैसा देते हैं। हम चाहते हैं आप ज़ात की बुनियाद पर आप लोग भेदभाव नहीं करना है। आप हुकूमत में हैं तो आप तमाम को जो है बराबरी के हुकूक देना है। उधर प्रवीण नेट्टार को भी देना है तो उधर जाकर मकसूद को भी देना है, उधर दूसरों को भी देना है। तो ये हमारा डिमांड है। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कभी डरने वाली पार्टी नहीं है और हम लोग गलत काम कर रहे भी नहीं और कभी करेंगे भी नहीं। हमारा जो भी आप लोग जाकर एनआईए नहीं, आप जो भी अपना डिपार्टमेंट को आप गलत इस्तेमाल कर हमारे को डराने की कोशिश करेंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। तो इंशाल्लाह इतना।